मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज परिश्रम का महत्व के बारे में और एकता का महत्व या एकता में बल है, इस विषय पर आने वाली एक नई प्रोक्ति आज हम पढ़े। हमारी प्रोक्ति है कहानी। कहानी का नाम है मंत्र तंत्र। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी आप आपकी किताब ले लिए। एक छोटा सा गांव था। देयर वाज ए स्मॉल विलेज। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। देयर वर जस्ट 30 householders homes or houses. No, we have to say homes, right? Yeah. एक दिन 30 गृहस्वामियों को एक जगह मिलना था। One day, all 30 house masters wanted to get a place to join together. पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी। There was no such a place in the end of that village. पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी। There was no such a place in that village. जहां वे इकट्ठे हो सके, बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सके। What kind of place they wanted to get? They want to join together and relaxedly sitting, talk one to another. They wanted to get such a place. उनको ऐसा जगह मिलना है। वहां बैठकर आराम से, विश्राम से बैठकर एक दूसरे से आवश्यक बात करने की या बातचीत करने की जगह होनी चाहिए। ठीक है। गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी। There was an empty place at the border of that village. ऊबड़ गाबड़ और धूल मिट्टी से भरी। ऊबड़ गाबड़, uneven, और and धूल मिट्टी से भरी। धूल, dust, मिट्टी, mud. What was the specialty of that place? Yeah, that place fully filled with dust and mud, as well as it was uneven place. उन गृहस्वामियों में से एक कुमार एक दिन वहां आया। Among the villagers, one Mr. Kumar came in that place one day. उसने कुछ स्थान साफ किया। He cleared one place there. कुछ स्थान, some place he cleaned there. तभी वहां एक आदमी और आ गया। Then one more person came there. कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया। कुमार cleaned the place for that person too. 2-4 लोग और आगे। Then 2 and 4 person again came over there. वे भी कुमार के साथ लग गए। They also joined with कुमार। थोड़ी देर में ही वहां 30 आदमियों के खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई। After some time, or after a while, after some time, a neat and clean or a neat and tidy place was constructed for those 30 householders. Okay, so finally they got a great place that they had imagined or dreamt earlier. Okay. बातों बातों में कुमार ने कहा, While talking, कुमार said, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दें? Why can we make a stage here? चबूतरा का अंग्रेजी समान पद क्या है? हाँ, स्टेज। बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। Yeah, if we have made a stage there, we shall get a facility to sit and talk together. तुरंत, suddenly, सभी ने हामी भरी। Suddenly, at once, everybody agreed with कुमार। और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए and they collected
bricks and stones. क्यों? किसके लिए वे ईंट पत्थर इकट्ठे कर दिए? हाँ, ठीक है, चबूतरा बनने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। सब प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते। या every day all of them jointly did a great hard work to make the stage. कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया। हाँ, after some times toil or task or work, they made a stage. Okay, विश्राम स्थल या जगह को बना दिया। कुछ दिनों के उद्यम से, after toiling or working of few days, they constructed a stage. A stage was constructed by the effort of those 30 persons after some days. धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। Gradually they made a room too. A room also was constructed gradually there. जल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। They arranged water facilities as well as mat. For what purpose the mat? चटाइयाँ, mats. For what purpose? Yeah, to sit. देखिए, अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगे। Now people began to come there for entertainment और recreation. आमोद प्रमोद का अंग्रेजी समान पद क्या है? हाँ, recreation, entertainment. परिश्रम भी एक आदत होती है। Hard work is become a habit. गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे आवश्यकता पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब गोद लेते, कुएं साफ कर देते और इन सब का परिणाम ये हुआ कि गांव में खुशहाली आ गई। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी। They happened the result of the hard work of villagers. What are they? Yeah. So आवश्यकता पड़ते ही, whenever need or whenever necessarily, whenever it is needed, they made the roads. सड़क बना देते, they constructed roads. पुल बना देते, they constructed bridges. पुल, bridge या bridges. तालाब गोद लेते, they digged pond. कुएं साफ कर देते, they cleaned well or wells. और इन सब का परिणाम यह हुआ। Yeah, the result of all these great work happened like this. What one? कि गांव में खुशहाली आ गई। Yeah, happiness came to the village. There happened the happiness, the constructed happiness, due to the great hard work of the villagers. Bring happiness to their village. तो ठीक है, या परिश्रम एक महत्व चीज है, महत्व कार्य है। ये महत्व को हम जानना चाहिए। इसके बारे में जानने के लिए आप एक गतिविधि तैयार करना है। गतिविधि यही है, एक अनुच्छेद लिखना है। विषय क्या है आपको पता है? हाँ, हमारा विषय है परिश्रम का महत्व। तो ठीक है बच्चों, आज कक्षा अंत होने के बाद आप एक अनुच्छेद तैयार करना चाहिए। विषय है परिश्रम का महत्व। ठीक है, तो आज ये बस होती है। ठीक है, अब और एक बार भी हम क्या क्या चर्चा करते थे इस पर एक बार भी पुनरावृत्ति करें, एक दृश्याभास की जरिए। तो ठीक है, आप देखिए। पाठ 4 मंत्र तंत्र।
इस पाठ में बताया गया है कि परिश्रम करके व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को सुधार और संवार सकता है। अपने लिए आवश्यक वस्तुओं को हम खुद ही मिलकर बना सकते हैं। इससे हमारे गांव और देश की उन्नति होगी। एक छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 30 गृह स्वामियों को एक जगह मिलना था। पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी जहां वे इकट्ठे हो सकें, बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सकें। गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी, उबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी से भरी। कुमार, जो 30 गृह स्वामियों में से एक था, वहां आया। उसने कुछ स्थान साफ किया। तभी वहां एक आदमी और आ गया। कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया। 2-4 लोग और आ गए। वे भी कुमार के साथ लग गए। थोड़ी देर में ही वहां 30 आदमियों के खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई। बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों ना हम यहाँ चबूतरा बना दें, बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। तुरंत सभी ने हामी भरी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। सब प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते। कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। जल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगे। परिश्रम भी एक आदत होती है। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे आवश्यकता पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते, कुएं साफ कर देते और इस सब का परिणाम यह हुआ कि गांव में खुशहाली आ गई। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।